Hello students, how are you? I welcome you to this new class, online class in economics. Today we'll discuss some more important concepts related to calculation of national income. In the previous slide or previous class, we discussed the circular flow of income, isn't it? And today the concepts that we are going to discuss will be very helpful in answering questions, both theory type questions and calculation based questions from national income chapter, isn't it? So this class will be very important for you. I hope you'll enjoy it and you will understand some very important ideas or concepts, you can say, which are related to national income. So let us proceed. So before we start our class, I would like to just give you some hints what are the things we are going to cover in this particular online class. So as you can see on the screen, the topic is national income and related concepts. So our basic focus will be on the related concepts only. Okay. So what are the things that we are going to cover in this class? Just have a quick look of this. Okay, first you can see domestic territory and political territory. Domestic territory and political territory. Second, we will discuss the meaning of normal residents. Third, non-residents. Fourth, we will discuss what is domestic income. Then we will discuss what is national income. We will confine to the meanings only here. Domestic income and national income, we will discuss only the meanings, because in the coming classes we will be discussing in detail how to calculate domestic income, how to calculate national income, what are the basic differences between them, how to convert them from one to another. All these things will be covered later on. But for the time being, we'll just explain the meaning. We'll try to learn only the meaning of domestic and national income. Okay. Then we'll see what is national income accounting, and at last but not the least, we'll see what is the importance of national income accounting. So these are basically the things that we are going to cover in this class. Okay. So let's proceed. As you see on the screen, domestic territory. So what is the meaning of domestic territory of a country? ठीक है, डोमेस्टिक टेरिटरी कहने से हम क्या समझते हैं? If we ask this question to a layman or a common man, then most probably we will get the answer that the political boundary of a country is called the domestic territory, or he or she may say that the land within the political boundary of a country is called the domestic territory, isn't it? But when we discuss economics, okay, in economics the meaning of domestic territory is quite different from the definition or the meaning of for a layman. Understood? So domestic territory का अर्थ जो होता है इकोनॉमिक्स में क्वाइट डिफरेंट हो जाता है. ये पॉलिटिकल टेरिटरी से रिलेटेड है बट डज नॉट रिप्रेजेंट ओनली द पॉलिटिकल टेरिटरी. ठीक है, तो क्या है ये चीज़, इसको हमको समझना जरूरी है. तो चलो आगे बढ़ते हैं. आपके सामने दिखाई देता होगा अभी, डोमेस्टिक टेरिटरी इज इंपॉर्टेंट फॉर कैलकुलेटिंग डोमेस्टिक इनकम ऑफ ए कंट्री. तो फॉर द टाइम बीइंग यू जस्ट रिमेंबर दैट इफ यू वांट टू कैलकुलेट द डोमेस्टिक इनकम ऑफ ए कंट्री, जैसे कि हमने क्लास 10 में पढ़ा है डोमेस्टिक इनकम क्या है, तो अगर हम डोमेस्टिक इनकम को कैलकुलेट करना चाहते हैं कोई भी कंट्री का, देन वी मस्ट know what is the domestic territory of the country. If you do not have idea about the domestic territory of the country, it will be very difficult to calculate domestic income, and sometimes we may also commit errors, right? Then it is the economic territory of a country. Domestic territory का अर्थ होता है economic territory. So domestic territory को और एक नाम से हम जानते हैं और बोल सकते हैं, जिसको कहते हैं कि economic territory of a country. देन इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द पॉलिटिकल टेरिटरी. ये बताना मैं चाहता था आप लोगों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको डिस्टिंग्विश करना है. पॉलिटिकल टेरिटरी से डोमेस्टिक टेरिटरी डिफरेंट है. कैसे डिफरेंट है? देखिए, पॉलिटिकल टेरिटरी इज़ द पॉलिटिकल डोमिनियन ऑफ ए कंट्री इन व्हिच इट हैज़ इट्स एडमिनिस्ट्रेशन. इसका अर्थ है कि जो एरिया के ऊपर,
जो लैंड एरिया हो, वाटर बॉडीज हो, जिसके ऊपर एक कंट्री का अपना पॉलिटिकल रूल है, उस गवर्नमेंट का अपना एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको कहा जाता है पॉलिटिकल टेरिटरी ऑफ द कंट्री। जैसे कि इंडिया का मेनलैंड प्लस अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, जो कि इंडिया से कनेक्टेड नहीं है लैंड बॉडी से, बट दे आर स्टिल पार्ट ऑफ इंडियाज पॉलिटिकल टेरिटरी। क्यों? क्योंकि अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड में इंडिया का गवर्नमेंट का रूल चलता है। सो दे आर पार्ट्स ऑफ इंडियाज पॉलिटिकल डोमिनियन और इंडियाज पॉलिटिकल टेरिटरी। ओके, बट व्हेन वी टॉक ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी, इन इकोनॉमिक्स डोमेस्टिक टेरिटरी और इकोनॉमिक टेरिटरी में स्ट्रेच बियॉन्ड द पॉलिटिकल टेरिटरी ऑफ ए कंट्री। जो डोमेस्टिक टेरिटरी है वो पॉलिटिकल टेरिटरी के बाहर भी हो सकता है। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट डोमेस्टिक टेरिटरी इज विद इन द पॉलिटिकल टेरिटरी ऑफ ए कंट्री, ये जरूरी नहीं है, ये बात को ध्यान में रखना है। तो क्या है फिर डोमेस्टिक टेरिटरी का अर्थ क्या है? अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, जो यूएनओ है, उसके हिसाब से उसने जो डेफिनेशन दिया है, अकॉर्डिंग टू दैट डोमेस्टिक टेरिटरी इज द जियोग्राफिकल टेरिटरी administered by the government of a country within which persons, goods and capital move freely. This is very very important to define geographical territory. If you get this question, what you mean by domestic territory, what is geographical territory, or what is economic territory of a country, you can write these 3 lines. This is the definition you can write for the answer. Okay, so let me explain that. So geographical territory एडमिनिस्ट्रेड बाय द गवर्नमेंट, अगर कोई भी देश का गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन में एक टेरिटरी आता है, चाहे वो एरिया अपने कंट्री के अंदर हो या बाहर हो, अगर दोनों एरिया के बीच पर्सन्स ऑफ द कंट्री, गुड्स फ्रॉम द कंट्री, कैपिटल फ्रॉम द कंट्री मूव फ्रीली, अगर ये तीनों चीज़ों का मूवमेंट फ्रीली होता है, ठीक है, then that area will be considered as domestic territory of that country. तो कंडीशन क्या है? There should be free movement of persons, goods and capital within that territory. Okay? So this is called domestic territory. आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि एक डोमेस्टिक टेरिटरी जो है, इकोनॉमिक टेरिटरी जो है, वो एक कंट्री का पॉलिटिकल टेरिटरी के बाहर भी हो सकता है, ठीक है, अगर ये कंडीशन फुलफिल होता है तो, राइट। लेट अस प्रोसीड नाउ। सो नाउ विल आई ट्राई टू एक्सप्लेन दैट विद द हेल्प ऑफ ए पिक्टोरियल एग्जाम्पल। यहाँ पे हम एक इंडिया का मैप ले रहे हैं। यहाँ पे कुछ मार्क्स आपको दिखाई देगा। एज यू कैन सी, दिस इज द मेन लैंड ऑफ इंडिया। ये है मेन लैंड ऑफ इंडिया, राइट और नॉट? दिस इज कॉल्ड द मेन लैंड ऑफ इंडिया, और इंडिया का पॉलिटिकल टेरिटरी का पार्ट ये है। प्लस ये जो आइलैंड आप देख रहे हो, अंडमान निकोबार, एंड ये यहाँ पे है लक्षद्वीप। दीज आर ऑल्सो पार्ट्स ऑफ इंडियाज पॉलिटिकल टेरिटरी, राइट, बिकॉज दे आर एडमिनिस्ट्रेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट। नाउ यहाँ पे और कुछ चीज़ें हम देख सकते हैं, जैसे कि जितने भी रेड डट्स आपको दिखाई दे रहा है, फॉर एग्जाम्पल दिस वन यू कैन सी वन रेड डट हियर इन अफगानिस्तान, one red dot you can see in Pakistan, there is one more red dot you can see in Nepal. यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो है नेपाल में जो रेड डॉट है, इट इज़ रिटन इंडियन एम्बासी इन नेपाल। यहाँ पे लिखा है इंडियन एम्बासी इन पाकिस्तान, दिस वन इज इंडियन एम्बासी इन पाकिस्तान। सिमिलरली दिस इज इंडियन एम्बासी इन अफगानिस्तान। सो ओके, यू मे बी हैविंग डाउट व्हाट इज एन एम्बासी। लेट मी टेल यू, एम्बासी जो होता है इट इज़ अ डिप्लोमेटिक ऑफिस, ठीक है, क्योंकि आज हम लोग एक ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी में रह रहे हैं। वी आर हैविंग इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स विथ मेनी कंट्रीज। तो क्या होता है, हर एक कंट्री का जो कंट्री के साथ इंटरनेशनल रिलेशनशिप होता है, इकोनॉमिक बिजनेस कुछ भी होता है, तो वहाँ पे अपना अपना ऑफिसेस बनाते हैं। सो इंडिया का भी अपना गवर्नमेंट का ऑफिसेस है, कहाँ पे? पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, अमेरिका में, जापान में, नेपाल में, इस तरह का इंडिया का एम्बासी वहाँ पे है। तो एम्बासी का काम क्या होता है? एम्बासी का काम होता है कि डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप को बनाए रखना दोनों कंट्री के बीच, ठीक है। अगर इंडिया पाकिस्तान के बीच अगर यहाँ पे इंडिया का एम्बासी है, तो ये एम्बासी का काम क्या होता है? एक तो नंबर 1 बायलैटरल डिप्लोमेटिक इश्यूज को
हैंडल करना, बायलैटरल मतलब इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो भी डिप्लोमेटिक इशू होगा उसको हैंडल करना, ठीक है। सेकंड, प्रिजर्विंग द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स ऑफ दैट कंट्री अब्रोड। पाकिस्तान में अगर इंडिया के लोग रहते हैं तो इंडियन लोगों का जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी उनको हक है, जो भी राइट्स है, उसको प्रिजर्व करना, उनके लिए उसको सपोर्ट करना, उनको हेल्प करना, ये काम होता है इंडियन एम्बासी इन पाकिस्तान में, ठीक है। सो उसी तरह से इंडियन एम्बासी जो जो कंट्री में है उसका काम वही होता है, टू मेंटेन डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप एंड टू प्रिजर्व द राइट्स ऑफ द इंडियन सिटीजन्स इन दोज कंट्रीज। उस तरह से और एक वर्ड है कंसुलेट, ठीक है। जैसे एम्बेसी है, जस्ट लाइक दैट देयर इज अनदर ऑफिस दैट इज कॉल्ड कंसुलेट। कंसुलेट जो है वो एम्बेसी से थोड़ा सा माइनर है। It is doing the same work as just like your embassy, but it is the smaller version of an embassy. इसका काम होता है टू हैंडल माइनर डिप्लोमेटिक इशूज लाइक वीज़ा इशू करना सिटीजन अपने कंट्री के लोगों को, देन टेकिंग केयर ऑफ माइग्रेंट्स, टूरिस्ट, ये लोगों को हेल्प करना, ये काम होता है कंसुलेट का। सो जैसे एम्बासीज इन वी हैव एम्बासीज इन डिफरेंट कंट्रीज, उस तरह से कंसुलेट्स भी बहुत सारे कंट्रीज में हमें हमारा है, ओके। तो अभी क्वेश्चन ये है कि ये जो एम्बासी और कॉन्सुलेट बाहर कंट्री में हम देख रहे हैं इंडिया का, तो ये क्या इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटरी के अंडर आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि ये तो इंडिया का पॉलिटिकल टेरिटरी के बाहर है, राइट और नॉट। तो आंसर इज ये इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा। रीज़न क्या है, बिकॉज दे आर एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये एम्बासी नो डाउट इट इज़ लोकेटेड विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्री ऑफ पाकिस्तान, इट इज़ लोकेटेड इन पॉलिटिकल बाउंड्री ऑफ अफगानिस्तान, स्टिल दे आर एडमिनिस्टर्ड, उनका जो मेन एडमिनिस्ट्रेशन है, उनका रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी है दैट इज़ फिक्स्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट। दे आर एडमिनिस्टर्ड ऑपरेटेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट, ओके। यहाँ पे जो लोग काम करते हैं उनका जो सैलरी अलाउंसेस जो भी बेनिफिट्स उनको मिलती है दैट कम्स फ्रॉम इंडिया ओनली। दैट्स वाई though they are located outside the political boundaries of India, ये तीनों they will be considered to be under domestic territory of India. So that is very very important. अभी हम चलते हैं एक दूसरे टाइप एग्जाम्पल में। ये आप देख सकते हो एक वाइट कलर का एक छोटा सा ट्रायंगल, इट इज़ ऑल्सो लोकेटेड हियर। यहाँ पे मैंने लिखा है कि दिस रिप्रेजेंट्स इंडियन कंपनी अब्रोड। जैसे कि इंडिया का बहुत सारे बड़े बड़े कंपनीज है, रिलायंस है, टाटा है, विप्रो है, इन्फोसिस है, ये सब कंपनी का ब्रांचेस फॉरेन कंट्रीज में भी हो सकते हैं। तो सपोज मान लेते हैं कि यहाँ पे इंडिया के कंपनी का ब्रांच चाइना में है और एक है श्रीलंका में। तो ये तो है तो इंडियन कंपनी, बट देयर ब्रांचेस आर इन फॉरेन कंट्रीज विच आर नॉट अंडर इंडियन पॉलिटिकल टेरिटोरी। तो नाउ द क्वेश्चन इज the profit or the business whatever these branches are making in those countries, will that be covered in India's domestic territory or not? ठीक है, तो आंसर इज नो। ध्यान रखो, आंसर इज नो, क्योंकि दीज आर नॉट विद इन द पॉलिटिकल टेरिटरी ऑफ इंडिया, ऑल्सो दे आर नॉट विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, ये इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटरी के अंडर नहीं आते हैं। इंडिया का कंपनी होने के बावजूद दे विल बी कंसिडर्ड टू बी विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ दोज कंट्रीज वेयर दे आर लोकेटेड। मतलब ये चाइना का इंडिया कंपनी इन चाइना विल बी पार्ट ऑफ चाइनीज डोमेस्टिक टेरिटरी, इंडियन कंपनीज ब्रांच इन श्रीलंका विल बी कंसिडर्ड ए पार्ट ऑफ श्रीलंकन डोमेस्टिक टेरिटरी। ठीक है, लेट अस प्रोसीड टू द थर्ड एग्जांपल। यहाँ पे आपको कुछ स्टार मार्क दिखाई देता होगा, एक महाराष्ट्र एरिया में और एक गुजरात में। तो ये दोनों जो हैं ये मैंने लिखा है फॉरेन कंपनी इन इंडिया। जैसे हमारा कंपनी इन फॉरेन कंट्रीज इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आता है, वो कंट्री का टेरिटरी में आता है जहाँ पे वो लोकेटेड है। उसी तरह से अगर कोई फॉरेन कंपनी का ब्रांच इंडिया में है और वो कंपनी का ब्रांच इंडिया का रॉ मटेरियल, इंडिया का रिसोर्सेस, इंडिया में अपना बिजनेस करता है, इनकम करता है, तो दे विल बी कंसिडर्ड टू बी पार्ट ऑफ इंडियाज डोमेस्टिक टेरिटरी, नॉट अंडर द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ दोज कंट्रीज। तो ये दोनों जो हैं फॉरेन कंपनी का ब्रांच इंडिया में, वो इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटरी में कंसिडर किया जाएगा। ओके, नाउ यू कैन सी वन स्मॉल डॉट हियर, एक छोटा सा डॉट आपको दिखाई देता होगा, ये है अमेरिकन एम्बेसी इन इंडिया।
तो अमेरिकन एम्बासी इन इंडिया जो कि दिल्ली में सपोज उसका ऑफिस है, तो विल इट बी अ पार्ट ऑफ इंडियाज डोमेस्टिक टेरिटरी? आंसर इज नो, ये डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि दैट इज लोकेटेड इन इंडिया, नो डाउट, बट इट इज ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका, सो इट विल बी a part of domestic territory of America. So embassy, American embassy in India will be part of American domestic territory. Okay, तो ये था थोड़ा सा आइडिया अबाउट द which are the things to be included or not included in domestic territory of a country. आगे बढ़ते हैं, what are included and what are excluded from domestic territory, ये बात हम थोड़ा सा देखेंगे। पहले इंक्लूडेड, कौन कौन सा चीज़ों को हम इंक्लूड करते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी में। सी, शिप्स, फ्लाइट्स एट्सेट्रा ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ ए कंट्री बिटवीन कंट्रीज। तो अगर इंडिया का कोई नॉर्मल रेसिडेंट, इंडिया का जो हम बाद में थोड़ी देर में पढ़ने वाले हैं, नॉर्मल रेसिडेंट किसको कहते हैं, तो अगर कोई इंडियन फ्लाइट या इंडियन शिप जो कि इंडिया का कोई नॉर्मल रेसिडेंट का है या तो फिर इंडिया को बिलोंग करता है, वो दूसरे कंट्रीज़ में सर्विस देता है। एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज इंडियन एयरलाइन इज गिविंग सर्विस बिटवीन जापान एंड फ्रांस। जापान एंड फ्रांस में इंडिया का फ्लाइट, इंडियन एयरलाइन का फ्लाइट चलता है। जापान एंड फ्रांस दे आर फॉरेन कंट्रीज, दे आर नॉट विद इन इंडियाज डोमेस्टिक पॉलिटिकल टेरिटोरी, बट जो शिप, जो फ्लाइट जापान और फ्रांस के बीच अपना सर्विस देता है, because they are operated by Indian normal residents, they will be considered to be part of India's domestic territory. तो ये इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा, ठीक है। सेकेंडली, फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड गैस रिग्स ऑपरेटेड बाय द रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री इन द इंटरनेशनल वाटर्स। इंटरनेशनल वाटर्स इसका अर्थ मैं अभी तुमको बताने वाला हूँ। और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है, यहाँ पे अगर कोई भी EEZ हम इसको कहते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, और इंटरनेशनल वाटर्स में अगर हमारा कोई भी रिसोर्स मौजूद है, जैसे ऑयल हो गया, गैस हो गया, इस तरह का रिसोर्स हमको समंदर में, ओशंस के अंडर हमको मिलता है, तो वो भी इंडिया का या तो उसी कंट्री का डोमेस्टिक टेरिटरी के अंडर आएगा। इसको समझाने के लिए मैं आपके लिए एक छोटा सा मैप रखता हूँ सामने। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो दिस इज द मेन लैंड और मेन पॉलिटिकल बाउंड्री ऑफ इंडिया, राइट और नॉट, ये है, ठीक है, ये हमारा कोस्ट लाइन है। यू नो इंडिया इज हैविंग ए वेरी लॉन्ग कोस्ट लाइन, बहुत सारे कोस्टल स्टेट्स, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, देन तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, इस तरह का बहुत सारे स्टेट्स हैं, वेस्ट बंगाल, जो कि कोस्टल स्टेट्स हैं। कोस्टल स्टेट मतलब जो कि समुंदर से लगा हुआ है या तो ओशन से लगा हुआ है। तो अभी बात यह है कि ओशन और समुंदर में भी बहुत सारे रिसोर्स मौजूद हैं, जैसे कि मुंबई हाई। मुंबई है क्या है? एक ऑयल फील्ड है जो कि महाराष्ट्र में है, और मुंबई के ऑफशोर ऑयल फील्ड उसको कहा जाता है, इंडिया का लार्जेस्ट ऑयल फील्ड, वहाँ पे पेट्रोलियम प्रोडक्ट मिलता है। तो इंडिया का जो मेन लैंड में नहीं है, वो समंदर के अंदर है, बट स्टिल इट विल बी कंसिडर्ड टू बी पार्ट ऑफ इंडियाज डोमेस्टिक टेरिटोरी। ये जो EEZ आप देख रहे हो, EEZ, एक्सटेंट ऑफ EEZ, EEZ क्या होता है, मैं थोड़ा सा आपको इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। EEZ रिप्रेजेंट्स एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, आप देख सकते हो यहाँ पे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अकॉर्डिंग टू UN कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी 1982 में यूनाइटेड नेशंस ने एक लॉ डिक्लेयर किया था, एंड अकॉर्डिंग टू दैट लॉ कोई भी कोस्टल स्टेट या तो कोस्टल कंट्री जिसमें कोस्ट है, वो अपना कोस्ट से 200 किलो नॉटिकल माइल्स, 200 नॉटिकल माइल तक समुंदर में अगर कोई भी रिसोर्स मिलता है, ये जो एरिया आप देख रहे हो एक थीन लाइन की तरह दिख रहा है, ये हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का एरिया है। दैट मीन्स ये कोस्ट से 200 नॉटिकल माइल तक, 200 नॉटिकल माइल, 200 नॉटिकल माइल तक समुंदर के अंदर अगर कोई भी रिसोर्स मौजूद होता है तो वही कंट्री का रिसोर्स माना जाएगा, एंड दैट कंट्री विल हैव द एक्सक्लूसिव राइट टू एक्सप्लॉइट दैट रिसोर्स एंड यूज दैट रिसोर्स। इस तरह से ये जो एंटायर एरिया है, ये इंडिया का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, जिसका एरिया अभी फॉर द टाइम बीइंग इंडिया हैज़ एन EEZ ऑफ 23,05,143 किलोमीटर्स। राइट, रिपीट, 23,05,143 स्क्वायर किलोमीटर का
हमारा EEZ का एरिया है। तो ये समुंदर के ये जो समुंदरी ये जो एरिया है विद इन द सी और ओशंस, इसके अंडर अगर कोई भी रिसोर्स हमको मिलता है दैट विल बी कंसिडर्ड टू बी अ डोमेस्टिक टेरिटरी और पार्ट ऑफ इंडिया, एक एज पर द राइट्स गिवन टू अस बाय द यूनाइटेड नेशंस। ओके, तो ये भी हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी के अंडर आएगा। लेट अस प्रोसीड। इंडियन एम्बासीज, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स एसेट्रा इन फॉरेन कंट्रीज, अभी तुमको बताया मैंने कि इंडियन एम्बासी अगर फॉरेन कंट्री में है, इंडिया का मिलिट्री बेस कोई फॉरेन कंट्री में है, though they are located in foreign countries, they will be part of India's domestic territory because they are administered and operated by India only. Firms or industries या foreign companies in India, फॉरेन कंट्री का कंपनीज एमएनसीज का कोई ब्रांच अगर इंडिया में है और इंडिया में वो अपना बिजनेस करता है, इंडिया में अपना प्रॉफिट करता है, बिजनेस इन्वेस्टमेंट करता है, जो भी करता है, तो दैट विल बी अ पार्ट ऑफ इंडियाज डोमेस्टिक टेरिटोरी। ब्रांचेस ऑफ फॉरेन बैंक्स इन इंडिया, फॉरेन कंट्री का ब्रांचेस अगर आता है कोई इंडिया में, जैसे कि अमेरिका का बहुत सारे ब्रांचेस अभी इंडिया में है, तो वो इंडिया का लोगों से, इंडिया के जो लोग हैं उनसे डिपॉजिट लेते हैं, उनको लोन देते हैं, एंड दे आर मेकिंग प्रॉफिट बाय यूजिंग व्हाट द रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, दैट्स व्हाई दे विल बी ऑल्सो पार्ट ऑफ इंडियाज डोमेस्टिक टेरिटोरी। तो ये जो 5 हमने देखा ये सब इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटोरी में आएगा। ओके, क्या क्या चीज़ इंक्लूड नहीं होता है, नॉट इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक टेरिटोरी, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एम्बासीज, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट एसेट्रा ऑफ ए फॉरेन कंट्री, फॉरेन कंट्री का अगर कोई मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या तो एम्बासी हमारे कंट्री में है, सो दैट विल बी ए पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटोरी ऑफ दैट रेस्पेक्टिव कंट्री, नॉट ऑफ इंडिया। ब्रांचेस ऑफ बैंक्स ऑफ ए कंट्री इन फॉरेन कंट्रीज, हमारे कंट्री का, इंडिया का सपोज एसबीआई का ब्रांच अभी नेपाल में है या तो भूटान में है, तो वो डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ नेपाल और भूटान का माना जाएगा, नॉट ऑफ इंडिया। ओके, देन ब्रांचेस ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या तो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, उसके ब्रांचेस जो हैं बहुत सारे कंट्रीज में हैं, उस तरह से हमारे कंट्री में भी उसका ब्रांचेस हैं, बट दे विल नॉट बी कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ इंडियाज डोमेस्टिक टेरिटोरी। ठीक है, वो इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटोरी के अंडर नहीं आएगा। दे विल बी कंसिडर्ड टू बी पार्ट ऑफ द व्हाट टेरिटोरी ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, नॉट ऑफ एनी कंट्री। देन फार्म्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ ए कंट्री इन फॉरेन कंट्रीज, इंडिया का अगर कोई फार्म या तो इंडस्ट्री फॉरेन कंट्री में है तो वो फॉरेन कंट्री का डोमेस्टिक टेरिटोरी में आएगा, नॉट विद इन इंडियाज डोमेस्टिक टेरिटोरी। तो ये तीनों चीज़ों को थोड़ा सा प्लीज़ ध्यान में रखना। ओके, इंपॉर्टेंट है थ्योरी क्वेश्चन के लिए। तो अभी एक टेस्ट ले लेते हैं। आपके सामने एक टेस्ट रखूंगा मैं, जो कि आपको सेल्फ असेसमेंट करना है, एंड जस्ट आफ्टर सीइंग द क्वेश्चन यू हैव टू आंसर योरसेल्फ इन योर माइंड वेदर दिस विल बी येस और नो। सो लेट्स हैव ए क्विक लुक। Japanese embassy in India is a part of India's domestic territory, yes or no? Japanese embassy in India is a part of India's domestic territory. Answer is yes or no. Just guess it, or if you know the answer then keep it writing or keep it thinking in your mind. Then office of Microsoft company in Bangalore is under domestic territory of the USA. Microsoft कंपनी का ब्रांच अगर बैंगलोर में है तो वो यूएसए का डोमेस्टिक टेरिटरी के अंडर आएगा। आंसर इज यस और नो। थर्ड, ब्रांच ऑफ ए जापानीज बैंक इन इंडिया इज अ पार्ट ऑफ द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। जापान का अगर कोई बैंक का ब्रांच इंडिया में है तो दैट विल बी अंडर डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। फोर्थ, वेस्ट बंगाल फिशरमैन्स फिशिंग वाटर इन द बे ऑफ बंगाल इन द परमिटेड एरिया इज अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। अगर वेस्ट बंगाल का फिशरमैन वेस्ट बंगाल का कोस्टल एरिया में फिशिंग करने के लिए जाते हैं जो कि परमिटेड एरियाज़ में है इंडिया का, तो वो एरिया जो है समुद्र में वो इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। फिफ्थ, द ऑफिस ऑफ द यूएन इन इंडिया इज अंडर द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो इनमें से कितना आंसर येस है, कितना नो है? अगर आप लोगों ने कर चुका है और आप डिसाइड कर चुके हैं कि कौन सा आंसर क्या होगा, जस्ट आपका आंसर को टेस्ट कर लीजिए, सही है कि गलत है। येस 3 and 4 येस है, 1, 2 and 5 नो है। ओके, लेट अस प्रोसीड। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। नॉर्मल रेसिडेंट का अर्थ क्या होता है, एंड ये बहुत सारा कन्फ्यूजन लाता है स्टूडेंट्स के मन में कि नॉर्मल रेसिडेंट और सिटीजन ये दोनों में क्या डिफरेंस है। ओके, तो अभी हम इसको क्लियर करेंगे। चलो,
फॉर द यस रिमेंबर नॉर्मल रेसिडेंट इज इम्पोर्टेंट टू कैलकुलेट नेशनल इनकम ऑफ ए कंट्री। कोई भी कंट्री का नेशनल इनकम हम जब कैलकुलेट करते हैं तो वो इम्पोर्टेंट बन जाता है नॉर्मल रेसिडेंट को समझना। ठीक है, हु इज ए नॉर्मल रेसिडेंट? इट रेफर्स टू एन इंडिविजुअल और एन इंस्टीट्यूशन। याद रखो, नॉर्मल रेसिडेंट खाली एक इंडिविजुअल नहीं होता है, ये एक इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, कोई एस्टेब्लिशमेंट हो सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, कोई कंपनी हो सकता है। इट कैन बी एनीथिंग। सो इट कैन बी एन इंडिविजुअल और एन इंस्टीट्यूशन, बट कंडीशन ये है कि वो इंस्टीट्यूशन और द इंडिविजुअल ऑर्डिनरली रिजाइड्स इन द कंट्री फॉर मोर देन 1 ईयर। यहाँ पे मैं फिर से आपको हाईलाइट करता हूँ, मोर देन 1 ईयर। अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन या तो इंडिविजुअल एक कंट्री में 1 साल से ज़्यादा रहता है एंड द सेंटर ऑफ इट्स इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन दैट कंट्री। इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहने से हम क्या समझते हैं कि वो इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन अपना मेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो कंट्री में परफॉर्म करता है, जैसे कि इन्वेस्ट करना, इनकम अर्न करना, एक्सपेंडिचर करना, प्रॉफिट करना, जो भी है, ऑल दिज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर व्हाट सेंटर्ड इन दैट कंट्री, जो कंट्री में वो रहता है फॉर मोर देन 1 ईयर्स। अगर ये दोनों कंडीशन कोई भी आदमी, कोई भी इंस्टीट्यूशन फुलफिल करता है तो उसको हम नॉर्मल रेसिडेंट में काउंट करेंगे, चाहे वो इंडिया का सिटीजन हो या फॉरेन कंट्री का सिटीजन हो। ठीक है, देखो, ए पर्सन मे बी द नेशनल ऑफ ए कंट्री बट नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अनदर कंट्री। एक आदमी, ये ज़रूरी नहीं है कि जो नॉर्मल रेसिडेंट जो कंट्री का है उसी कंट्री का वो सिटीजन भी होगा। ठीक है, एक आदमी दूसरा कंट्री का नेशनल और सिटीजन हो सकता है बट ही मे बी ए नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अनदर कंट्री। चलो मान लेते हैं कि एक इंडियन फॉरेन कंपनी में, फॉरेन कंट्री में जाके काम कर रहा है। अगर वो फॉरेन कंट्री में 1 साल से ज़्यादा रहता है, वहाँ पे कंपनी में काम कर रहा है, वहाँ पे अर्निंग कर रहा है, वहीं पे उसका इकोनॉमिक एक्टिविटी चल रहा है फॉर मोर देन 1 ईयर, देन ही विल बी ए रेसिडेंट, नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ दैट कंट्री। ठीक है, बट स्टिल ही विल बी नेशनल ऑफ इंडिया, वो इंडिया का ही सिटीजन रहेगा। समझ में आया? इंडिया का सिटीजन अगर फॉरेन कंट्री में काम करता है, 1 साल से ज़्यादा वहाँ पे रहता है और उसका मेन सेंटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वही कंट्री में है, तो वो उसी कंट्री का नॉर्मल सिटीजन, नॉर्मल रेसिडेंट कहा जाएगा, बट ही विल स्टिल बी ए नेशनल और सिटीजन ऑफ आवर कंट्री। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, अमेरिकन्स वर्किंग इन इंडियन कंपनीज इन इंडिया फॉर मोर देन 1 ईयर आर द नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, बट दे आर द नेशनल और सिटीजन्स, दे आर द नेशनल्स और सिटीजन्स ऑफ अमेरिका। अगर कोई अमेरिकन इंडिया में इंडिया का कंपनी में काम करता है, अमेरिका का लोग इंडिया में आए, इंडियन कंपनी ज्वाइन किए, इंडिया में फॉर मोर देन 1 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर्स जैसे ही काम करते हैं सपोज, तो उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इंडिया में हो रहा है और वो 1 साल से ज़्यादा इंडिया में रह रहा है, इसका अर्थ ये नहीं कि वो इंडियन सिटीजन हो गया। ठीक है, स्टिल ही विल बी सिटीजन ऑफ अमेरिका बट ही विल बी कंसिडर्ड नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, सो सिटीजन एंड रेसिडेंट्स आर 2 डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। सिटीजनशिप जो होता है पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट होता है, अगर आपको वोट देने का राइट, अधिकार मिलता है तो आप सिटीजन कहलाओगे। An American who is living in India and working in India, he will not get the right to vote in India. That's why citizenship is a political concept, whereas residentship or resident is an economic concept. ठीक है, सो ये बात प्लीज ध्यान में रखना। ओके, नेक्स्ट, कौन से लोगों को हम नॉर्मल रेसिडेंट में काउंट नहीं करते हैं या तो उनको हम नॉन रेसिडेंट कहते हैं, नॉन रेसिडेंट्स। देखते हैं, फॉरेन टूरिस्ट्स, विजिटर्स, पेशेंट्स कमिंग फॉर ट्रीटमेंट, स्पोर्ट्स पर्सन्स, एक्टर्स, स्टूडेंट्स एट्सेट्रा। जैसे कि हम जानते हैं अभी हम वी आर हैविंग इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स विद मेनी कंट्रीज, तो बहुत सारे फॉरेन टूरिस्ट्स इंडिया में आते हैं बिकॉज इंडिया इज़ हैविंग ब्यूटीफुल साइट्स, वर्ल्ड फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स आर देयर। सो एवरी ईयर, ऑलमोस्ट एवरी डे, मिलियंस ऑफ पीपल आर कमिंग टू इंडिया टू विजिट। ओके, पेशेंट्स, मेडिकल टूरिज्म की बात आपने सुना होगा। इंडिया में बहुत सारे ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, जैसे कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, यूनानी ट्रीटमेंट, योगा ट्रीटमेंट। ओके, ये जो नेचुरोपैथी, ये सब ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ जो इंडिया में अवेलेबल है एट वेरी रिजनेबल एंड चीप रेट कंपेयर टू व्हाट इट इज़ इन फॉरेन कंट्रीज।
तो उसके लिए क्या होता है ना, फॉरेन कंट्री के बहुत सारे पेशेंट्स इंडिया में आ जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए। ओके, आईपीएल का नाम अपना आईपीएल देखते होंगे। ओके, अभी तो आईपीएल जब चलता है तो फॉरेन कंट्री के प्लेयर आके इंडिया में खेलते हैं, यहाँ पे परफॉर्म करते हैं, यहाँ पे अपना इनकम पाते हैं, एंड देन दे गो बैक टू द रेस्पेक्टिव कंट्रीज। एक्टर्स, स्टूडेंट्स इस तरह से फॉरेन कंट्री से आते हैं, अपना काम यहाँ पे परफॉर्म करते हैं, फिर वहाँ पे वापस चले जाते हैं। सो दे विल नॉट बी कंसिडर्ड एज नॉर्मल रेसिडेंट्स। इनको हम नॉर्मल रेसिडेंट्स में काउंट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये जो लोग आते हैं एक स्पेसिफिक रीजन में आते हैं। दे डोंट कम हियर टू एस्टेब्लिश देमसेल्फ हियर एंड टू व्हाट अर्न मनी परमानेंटली इन दिस प्लेस। उनका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ये नहीं होता है। ठीक है, जो टूरिस्ट आता है कुछ दिन के लिए विजिट करता है, फिर वापस चला जाता है, 1 साल तक नहीं रहता है। ठीक है, अगर 1 साल रहता भी है तब भी अगर उसका मेन पर्पस ऑफ स्टेइंग हियर इज नॉट टू अर्न मनी एंड टू perform economic activities in this country, he will not be considered to be a normal resident of our country. तो पेशेंट्स, स्टूडेंट्स, स्पोर्ट्स पर्सन जो भी आते हैं कुछ स्पेसिफिक रीजन के लिए आते हैं। रिमेंबर, देयर सेंटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी डज नॉट लाई इन आवर कंट्री। ठीक है, अपना काम खत्म होने के बाद दे गो बैक टू देयर कंट्री एंड दे गिव सर्विस टू देयर कंट्री। दैट्स वाई दे आर नॉट कंसिडर्ड टू बी नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ आवर कंट्री। फॉरेन स्टाफ इन एम्बेसी, अगर इंडिया में फॉरेन एम्बेसी है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, वहाँ पे फॉरेन स्टाफ कुछ है, फॉरेन कंट्री का स्टाफ वर्कर्स हैं, तो वो भी हमारे कंट्री का नॉर्मल रेसिडेंट नहीं माना जाएंगे। वो लोग अपने कंट्री का नॉर्मल रेसिडेंट में काउंट होंगे। राइट। थर्ड, फॉरेन एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन द इंटरनेशनल बॉडीज, जैसे कि हमने पहले देखा यूएनओ का ऑफिस, WHO का ऑफिस, ये सब का ऑफिस हमारे कंट्री में है। तो फॉर एग्जाम्पल एक जापानीज वर्किंग इन द UN ऑफिस इन इंडिया, एक जापान का आदमी यूनाइटेड नेशंस का ऑफिस इंडिया में जो है वहाँ पे काम कर रहा है, तो क्या जापानीज आदमी इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट होगा? आंसर इज नो, वो जापान का ही नॉर्मल रेसिडेंट कहा जाएगा। ही विल नॉट बी ए नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया, रिमेंबर दैट। क्रू मेंबर्स ऑफ फॉरेन शिप्स एंड फ्लाइट्स, जो कि फॉरेन कंट्री का फ्लाइट्स या तो फिर पानी जहाज़, तो शिप्स होते हैं, वो जो आते जाते रहते हैं, उनमें जो क्रू मेंबर जो काम करते हैं, दे आर ऑल्सो नॉट नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया, दे आर कॉल्ड नॉन रेजिडेंट्स। वर्कर्स क्रॉसिंग द इंटरनेशनल बॉर्डर्स ऑन रेगुलर बेसिस फॉर वर्क एंड लाइवलीहुड, एज यू नो, टेक फॉर एग्जाम्पल इंडिया का नेबरिंग कंट्री लाइक नेपाल एंड बांग्लादेश, ये कंट्री का बॉर्डर इंडिया से लगा हुआ है, एंड एवरी डे ऑलमोस्ट थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स फ्रॉम बांग्लादेश एंड नेपाल दे कम टू इंडिया, दे डू देयर बिजनेस, दे वर्क हियर एंड देयर ऑन देयर मनी, एंड अगेन इन द इवनिंग दे गो बैक टू देयर विलेजेस और देयर होम्स। तो क्या ये लोगों को हम नॉर्मल रेसिडेंट में काउंट करेंगे? आंसर इज नो, ये नॉर्मल रेसिडेंट्स में काउंट नहीं होंगे। ओके, ठीक है, लेट अस प्रोसीड। अभी हम देखेंगे डोमेस्टिक इनकम क्या है, नेशनल इनकम क्या है। एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन टू यू बिफोर दैट वी विल फोकस ओनली ऑन द मीनिंग फॉर द टाइम बिंग, लेटर ऑन विल डिस्कस इट इन डिटेल। तो डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम में क्या बेसिक डिफरेंस है? डोमेस्टिक इनकम इज द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द इकोनॉमिक टेरिटोरी। ये बात इंपॉर्टेंट है, विद इन द इकोनॉमिक टेरिटोरी जितना भी प्रोडक्शन होता है by different productive sectors like primary sector, secondary sector and tertiary sector, ओके, उसका जो फाइनल जितना भी फाइनल गुड्स प्रोडक्शन करते हैं ये तीनों सेक्टर, उसका जो मनी वैल्यू होता है इन ए ईयर, दैट इज कॉल्ड द डोमेस्टिक इनकम और GDP जिसको हम कहते हैं। सो द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द इकोनॉमिक टेरिटोरी ऑफ ए कंट्री वेदर बाय रेजिडेंट्स और नॉन रेजिडेंट्स, चाहे वो रेजिडेंट्स के द्वारा हो या तो नॉन रेजिडेंट्स के द्वारा हो, बट अगर विद इन इकोनॉमिक टेरिटोरी में प्रोडक्शन होता है तो डोमेस्टिक इनकम में काउंट होगा। ओके, ऑन द अदर हैंड नेशनल इनकम इज द मनी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स, जितने भी प्रोडक्शन नॉर्मल रेजिडेंट के द्वारा होता है उसका जो मनी वैल्यू है वो कहलाता है नेशनल इनकम। देन हियर वन थिंग वी हैव टू कीप इन माइंड, वेदर इट इज लोकेटेड विद इन द इकोनॉमिक टेरिटोरी और आउटसाइड द इकोनॉमिक टेरिटोरी, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट। ठीक है, जितना भी प्रोडक्शन होता है बाय नॉर्मल रेसिडेंट, चाहे वो इंडिया का इकोनॉमिक टेरिटोरी के अंडर आता हो या तो नहीं आता हो, फिर भी वो नेशनल इनकम में काउंट होगा अगर वो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट है तो। सो दिस इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। ओके, वन मोर थिंग
Again, I would like to highlight here that to calculate domestic income, we must know what is the economic territory of a country and what are the productive activities taking place within the economic territory. अगर इकोनॉमिक टेरिटरी के बाहर कुछ प्रोडक्टिव एक्टिविटी होता है तो डोमेस्टिक इनकम में कैलकुलेट नहीं होगा। उसी तरह से नेशनल इनकम कैलकुलेशन करने के लिए नॉर्मल रेसिडेंट के द्वारा कितना प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, चाहे वो इंडिया का इकोनॉमिक टेरिटरी के अंडर होता हो या तो इंडिया का इकोनॉमिक टेरिटरी के बाहर प्रोडक्शन वो करते हो, बट इफ दे आर नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया देन दैट विल बी काउंटेड इन नेशनल इनकम ऑफ इंडिया। ओके, लेट्स प्रोसीड। एंड नाउ वी आर कमिंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ आवर क्लास फॉर द टाइम बिंग। नेशनल इनकम अकाउंटिंग क्या है एंड इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। देखिए, तो अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, काउंट करना और उसका एक डिटेल अकाउंट रखना, राइट। जैसे कि हम जानते हैं प्रोडक्शन, जब भी कुछ प्रोडक्शन होता है तो इनकम जनरेट होता है, जैसे हमने पहली क्लास में पढ़ा है बिफोर इन फर्स्ट वीडियो। तो प्रोडक्शन इज द सेंटर ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो प्रोडक्शन कौन कौन से सेक्टर करते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर, इजंट इट। तो ये तीनों सेक्टर जो प्रोडक्शन करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज व्हाटएवर, उसका जो मनी वैल्यू होता है इन ए ईयर दैट इज कॉल्ड नेशनल इनकम। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको, उसका तो कुछ हिसाब रखना पड़ेगा ना, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो वो जो कैलकुलेशन हम करते हैं उसको हम कहते हैं नेशनल इनकम अकाउंटिंग। ओके, सो नाउ व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इट, क्यों किया जाता है नेशनल इनकम कैलकुलेशन का इम्पोर्टेंस क्या है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इट, व्हाई डू पीपल स्पेंड सो मच टाइम, व्हाई द गवर्नमेंट्स टेक सो मच पेन इन कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री। चलो थोड़ा सा देखते हैं, इसको ब्रीफली डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट तो टू असेस द परफॉर्मेंस ऑफ द डिफरेंट सेक्टर्स। जैसे मैंने अभी तुमको बताया कि तीनों सेक्टर का जो प्रोडक्शन है, फाइनल गुड्स जो प्रोडक्शन करते हैं उसका जो मनी वैल्यू है उसको हम बोलते हैं जीडीपी और इनकम ऑफ द कंट्री। तो अगर हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर का परफॉर्मेंस क्या है, कौन सा सेक्टर हमको कितना कंट्रीब्यूट करता है नेशनल इनकम में, ठीक है, कौन सा सेक्टर से ज़्यादा इनकम आता है, कौन सा सेक्टर से हमको कम इनकम मिलती है। तो वी कैन हैव दिस क्लियर कट आइडिया इफ वी कैलकुलेट नेशनल इनकम और वी गो फॉर नेशनल इनकम अकाउंटिंग। सेकेंड, टू फाइंड आउट द ग्रोथ रेट ऑफ द इकोनॉमी। इंडिया का और कोई भी कंट्री का ग्रोथ रेट हम जान सकते हैं इफ वी हैव द इनकम ऑफ आवर कंट्री इन द प्रीवियस ईयर एंड वी कैलकुलेट द इनकम फॉर द करेंट ईयर। तो हम कंपेयर करके देख सकते हैं कि हमारा इनकम का ग्रोथ हुआ या तो इनकम कम हो गई, राइट। सो दिस फिगर वी कैन हैव एंड हमको पता चल जाएगा कि हमारा इकोनॉमिक कौन सा डायरेक्शन में जा रहा है, राइट और नॉट। सो ग्रोथ रेट जानने के लिए भी हेल्पफुल होता है। थर्ड, टू कैलकुलेट पीसीआई। पीसीआई का मतलब है पर कैपिटा इनकम, पर हेड इनकम। जब हम कोई भी कंट्री का टोटल इनकम को या तो जीडीपी को डिवाइड करते हैं बाय द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, इट इज कॉल्ड पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम जो है ये हेल्प करता है हमको जानने के लिए क्या, कि एक कंट्री डेवलप्ड कंट्री है कि डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है। तो पर कैपिटा इनकम अगर हमको जानना है, एवरेज इनकम ऑफ द कंट्री, तो हमको नेशनल इनकम जानना पड़ेगा। देन टू फाइंड आउट द चेंजिंग सिग्निफिकेंस ऑफ द डिफरेंट सेक्टर्स। जैसे मैंने अभी हमने डिस्कशन किया कि तीनों सेक्टर जो हैं उनका इंपॉर्टेंस जो है टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, ठीक है। तो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर का इंपॉर्टेंस कैसे चेंज होता है, कौन सा सेक्टर से कितना कंट्रीब्यूशन मिलता है इनकम को, और कौन सा सेक्टर कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, ये सब चीज़ जानने के लिए हमको नेशनल इनकम अकाउंटिंग की ज़रूरत है। देन इम्पोर्टेंट फॉर प्लानर्स, इन्वेस्टर्स एंड बिजनेसमैन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो, कोई भी इन्वेस्टर, कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी कंपनी कौन सा कंट्री में बिजनेस करना चाहेगा, जो कंट्री में उसका प्रॉफिट होने का चांस होगा। तो प्रॉफिट कौन सा कंट्री में चांस होगा, जो कंट्री में लोगों का इनकम ज़्यादा होगा, राइट और नॉट। जो कंट्री में लोगों का इनकम ज़्यादा है ऑब्वियसली देयर डिमांड विल बी मोर एंड दैट ए कंपनी कैन एक्सपेक्ट मोर प्रॉफिट फ्रॉम दैट कंट्री। तो इसलिए प्लानर्स, इन्वेस्टर्स एंड बिजनेसमैन जो भी हैं, कंपनीज हैं, वो देखते रहते हैं कि कौन सा कंट्री का इनकम बढ़ा, कौन सा कंट्री का इनकम कम है। तो इसीलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारे कंट्री में एमएनसीज आएँ, हमारे कंट्री में इन्वेस्टमेंट हो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो, हमारे कंट्री का ग्रोथ हो, हमारे कंट्री में बिजनेस बढ़े, हमारे कंट्री का लोगों को जॉब मिले, फॉरेन कंपनी यहाँ पे अपना एस्टेब्लिशमेंट करें, तो वी हैव टू इंक्रीज आवर नेशनल इनकम एंड
हम तभी कर सकते हैं इंक्रीज जब हमारे पास टोटल डिटेल होगा इनकम का, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देन इन द प्रिपरेशन ऑफ द बजट ऑफ द कंट्री, हर एक कंट्री अपना बजट बनाता है वंस इन ए ईयर, ठीक है। तो जब हम बजट बनाते हैं उसमें भी नेशनल इनकम अकाउंटिंग का ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। क्योंकि बजट में हम प्लान करते हैं कौन सा एरिया में कितना एक्सपेंडिचर करेंगे। तो अगर हमारे पास डिटेल नहीं होगा कि हमारा इनकम कितना है, लास्ट ईयर कितना था और इस ईयर हम कितना एक्सपेंडिचर करना चाहते हैं, तो विल नॉट हैव दिस प्रॉपर प्लानिंग to prepare the budget in an effective way. So that's why in preparing and implementing the budget, it is very essential to have a clear detail about your national income. Then to design and implement suitable growth models for the country. हर एक कंट्री का अपना ग्रोथ मॉडल होता है, ठीक है। तो ग्रोथ मॉडल क्या है, कंट्री को, तुम्हारे इकोनॉमी को जो जो आपका टारगेट है, हमारा ग्रोथ रेट क्या रहेगा, एम्प्लॉयमेंट क्या रहेगा, कितने इंडस्ट्रियल ग्रोथ क्या रहेगा, ऑल दिस थिंग्स, पॉवर्टी हमको कितना कम करना है, इनकम कितना बढ़ाना है, एवरीथिंग। सो दिस ऑल डिपेंड अपॉन द ग्रोथ मॉडल। तो अगर हमारे पास नेशनल इनकम का डिटेल्स रहेगा, अकाउंटिंग रहेगा, तो हम वी कैन असेस द परफॉर्मेंस ऑफ आर ग्रोथ मॉडल। जो ग्रोथ मॉडल हमने अडॉप्ट किया है अपना कंट्री को आगे बढ़ाने के लिए, अगर वो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसमें कुछ लैकुना है, कुछ फ्लॉज हैं, डिमेरिट्स हैं, उसको चेंज करना है, रेक्टिफाई करना है, या तो फिर उसको बेटर करना है। ऑल दिस थिंग्स कैन बी डन ओनली व्हेन वी विल हैव द नेशनल इनकम अकाउंटिंग विथ अस। तो दीज आर द बेसिक importance or significance or purposes why national income accounting is done. Okay, I hope this class will be very useful to you, and if you have any doubts, any kind of comments, you can mention me. Okay, and in the coming classes we'll be discussing some more concepts related to national income accounting and which will be directly connected with the calculation of national income. So stay focused, stay happy, stay healthy. I hope you enjoyed it. Thank you. Have a nice day.